Good morning, everyone. I, Priyanka Sisodia, on behalf of Mathematics Department, Medicaps University, warmly welcomes Honorable Professor Dr. Dilip K. Patnaik, Vice Chancellor, Medicaps University, Honorable Professor Dr. D. K. Panda, Pro Vice Chancellor, Medicaps University, all respected deans and HODs, and all faculty members. And it's my immense pleasure to welcome our today's expert, Dr. Maya Ingle Ma'am, Professor, School of Computer Science and Information Technology, DAVV, and also Director of DDU Kaushal Kendra, DAVV, Indore. Today we all gathered here to celebrate Mathematics Week, which is catalyzed and sponsored by National Council for Science and Technology, Communication NCSTC, DST New Delhi, and MP Council of Science and Technology, MPCST Bhopal. As National Mathematics Day is observed on 22 December of every year, in the honor of Srinivas Ramanujam, the mathematical genius Ramanujan was born on 22 December 1887. Ramanujan's knowledge of mathematics was startling. He worked out the Riemann series, the elliptic integral, Mach theta function, Ramanujan conjecture, and many more. Ramanujan was also known as the man who knows infinity. As today is our first day of seminar, Excuse me, ma'am. we are honored to have Dr. Maya Ingle ma'am as our expert. She is PhD in computer science. More than 100 research student of her has been research paper of her been published in international, national journal and conferences. She is also awarded for excellent service in IT and many more. She is also invited as speaker in many international and national conferences in India and abroad too. Ma'am has vast experience of research. Under her guidance, research scholar 19 plus research scholar have been awarded PhD and many more students are pursuing presently. Apart from this, she is very humble lady. So without much delay, I would like to invite ma'am to share her knowledge with us. Now ma'am, it is over to you. Excuse me, मैम. हाँ बेटा बोलो क्या. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वेटिंग रूम में शायद. हाँ वो हम कर देंगे है ना. और मैम अटेंडेंस का क्या, मैं अटेंडेंस डालनी है क्या? बेटा अभी बातें नहीं करो है ना. अटेंडेंस चैट में डाल. ओके मैम. Maya ma'am. Yes, am I audible? Yes, over to you. Yes ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for introducing me. I welcome all of you for my session. Please let me tell you that I'm not going to teach, but yes, I'm very happy to share whatever I know about the ancient Vedic mathematics, which I know because whenever I was studying in Roorkee University, so there was a professor who was guide of me, Dr. Narendra Puri. So he taught me, but he taught me on one शर्त. एक शर्त पे उन्होंने मेरे को उस समय पढ़ाया था जब मैं पढ़ती थी कि wherever you go, you should expand it, you should talk of this particular mathematics in front of each and every youth of India. And why, all of the youth is there with me. So basically for them only, I said, yes, I am going to talk about this mathematics today for the students. Why he was that much interested? So it is a precious gift of our Indian culture. And during that time, not many people were aware of the wonders which were there, which are there. Basically, wonderful techniques are there. Within चुटकी में प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की क्षमता इस मैथमेटिक्स में देखते हैं. उस समय तो बिल्कुल ही नहीं पता था किसी को. But nowadays, very, those institutions who talked about, who deliver the lectures for the competitive exams to the students, they make use of this mathematics. But I am not sure that they might be talking about the details of this mathematics. So detail in the sense, I would like to cover only that it is a Vedic mathematics. मुझे आज भी
काफी लोग बताते हैं कि मैडम हमको ये सिखाया तो है, जहां भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, उनको ये सारी चीजें सिखाई जाती है। पर मुझे बहुत हैरानी होती है कि वो लोग ये नहीं बताते हैं कि ये वैदिक मैथमेटिक्स है, जो हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन है, और इसमें बहुत ज्यादा यदि हम बोले तो पावर है। सो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ पावर? सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद all of the young people who are there in this particular session. So मैं छोटा सा पहले इसके बारे में ग्लिम्सेस बताना चाहूंगी. What is it? Actually यदि हम इस मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका फुटिंग जो है पूरा साइंटिफिक है. So ये मैजिकल तो है पर इसका फुटिंग कंप्लीटली साइंटिफिक है. हाँ, so हम लोग यदि इसको सीखने की बातें करते हैं, so it is very easy and easily adaptable. So simple short mathematical processes are there which work with the magic speed basically. I can say like this. So जिन लोगों को मैथमेटिक्स बहुत कठिन लगता है, बर्डन लगता है, उनके लिए तो वाकई में एक बहुत बड़ा बोन है. So मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों ने स्पेशली, या हम जिन लोगों को जानते हैं कि जिनको मैथमेटिक्स बर्डन लगता है, उनको जरूर ये चीजें जो है सिखाना चाहिए. Because sometimes we feel that oh, so much entertainment is also there in it. So सबसे बड़ी बात कि जहां भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, जहां कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, so this mathematics is working more than the calculators. Since I am the student of computer science field, so कंप्यूटर भी हार्ट टेक सकता है, बट ये मैथमेटिक्स कभी भी फेल नहीं हो सकता, ये वाला मैथमेटिक्स. सो ऐसी कई सारी खूबियां इस मैथमेटिक्स में हैं. सो आइए हम लोग जो है हम इसके बारे में जानते हैं. एक्चुअली मैं सभी लोगों को फिर से दोबारा बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आपको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए नहीं आई हूँ. इस मैथमेटिक्स के सेलिएंट फीचर्स जो मैंने बताए हैं, तो उसको जो है वो वाकई में वो कितना इंटरेस्टिंग है, वो कितना यूजफुल है, कैसी मैजिक स्पीड से काम करता है, ये बताने के लिए मैं आई हूँ. और सबसे बड़ा, मैं जब इसके लिए टाइम देती हूँ तो मेरा मकसद है कि बच्चों, ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन है. हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे संस्कृति से निकली हुई ये चीजें हैं जो हमें ही नहीं पता है. यदि आज नहीं पता हो किसी को तो जान जाइए और गर्व से कहें कि हमारे मैथमेटिक्स की ये देन है जो कभी फेल नहीं हो सकता, मैजिकल स्पीड से काम कर सकता है. ऐसी जगह जहां कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, वहां इस वैदिक मैथमेटिक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज हम सबको जानना है. सो सबसे पहली बात कि हर कोई जानता है आज का बच्चा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित है. परंतु या जो हम जो नॉर्मल हमारा मैथमेटिक्स यूज करते हैं, तो वो मैथमेटिक्स जो है वो डेसिमल पद्धति पर आधारित है, डेसिमल सिस्टम पर आधारित है. बट दिस वैदिक मैथमेटिक्स, इट हैज इट्स ओन सिस्टम and it is known as the base system. वैदिक मैथमेटिक्स का अपना एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है बेस सिस्टम. अब ये बेस सिस्टम क्या है? तो ये बेस सिस्टम जो है इसमें 10 या पावर्स ऑफ 10 हम लोगों को मिलते हैं एज द बेसिस. सो कैन यू सी, आई हैव रिटन 10 मे बी द बेस, powers of 10. So 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, and so on. These may be the bases. So 10, 100, 1000, 10,000, and so on. They may be the bases. This is the simple logic of the base. That basis can, the base system can accommodate the powers of 10 only. So with this, let me proceed further. What this base meant for? What is this base meant for? So base से हम क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं
इसको वैदिक मैथमेटिक्स कहता है कि हर जो नंबर दिया गया नंबर है उसको सबसे पहले आप उस बेस सिस्टम से यूज करिए। अब देखिए सिंपल, यदि मैं बोलती हूँ अ नंबर 10 या नंबर 12 की बात करती हूँ, नंबर 12, तो मैं 12 को बहुत अलग अलग प्रकार से लिख सकती हूँ। सो कैसे लिख सकती हूँ? 10 + 2 लिख सकती हूँ, मैं 11 + 1 लिख सकती हूँ, मैं 8 + 4 लिख सकती हूँ, एंड लाइक दिस आई कैन मेक यूज ऑफ representation of 12 in variety of manners. Here in Vedic mathematics, I have restriction. What is that? I can write this 12 as 12 equal to 12 + 2. 12 + 2 is not 14 here. I'm talking of the representation of a number. So 12 is written as 12 + 2. How come it is? Simply 10 is the nearest best for 12. So how more it is than its base? So 2 more plus. So +2. And therefore, if I ask you what is the representation of 104? So everybody can tell me that 104 + 4. Here the base is 100. But see, it is correct. But I will suggest that you should write it as 04. 104 + 04. Can you see please? Rekha madam, दिख रहा है? Yes, ma'am. So why 04? See, the base for this number is 100. So 100 is having 2 zeros in it. So I would like to fulfill 2 digits here. That's all. 4 is same as 04. Everybody knows. So there is no problem at all. Okay. And therefore, suppose I ask you what will be the representation of 1009. So it is 1009 plus 009. अंशिका, मुझे ये चाहिए पूछने के लिए. Okay, so why 009? Everybody knows. The base for this number is 1000 and 1000, and 1000 contains 3 zeros. So here I am going to complete 3 zeros as 009. This is the way basically I have written this 1009. All of the numbers which you see are greater than their bases and quite nearer to their bases, but it does not mean that other numbers cannot be written. Let me tell you, 95. So everybody knows that the base for this is 100. So हमने कैसे करा? यहाँ नंबर को पहले as it is लिखा 12 को. So 12 is equal to 12 and 2 more than the base. Here what I will do, 95 is equal to 95 and 5 less than its base. So 05. So 95 is equal to 95 minus 05. Similarly, if I say 993, so I will write 993 minus 007. सभी को समझ में आ रहा है? सभी क्या स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Good. So let me बोर्ड पे proceed थोड़ा सा for रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा बोर्ड देख लेते हैं. मैम बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है मैम किसी उसके लाइट का. थोड़ा सा. ओके. अभी दिखेगा क्या? यस मैम दिख रहा है. थैंक यू सो मच मैम. Okay. So let me take the number 9981 now. So it will be 9981 minus 0019. Correct? 9981 Yes, ma'am. is equal to 9981 minus 0019. So this is all about the representation of the numbers in Vedic mathematics. Is there any problem to anybody, please?
Ma'am, can't see it. Ma'am, it's too blur. Pardon? Too blur. ब्लर आ रहा है, दिख नहीं रहा है। मैम थोड़ा सा डार्क लिखेंगे तो विजिबल होगा मैम, थोड़ा सा और डार्क हाँ, लिखिए। हाँ। ओके 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 ओके, चलिए मैं अब अगले इस पे थोड़ा डार्क लिखती हूँ। अंशिका क्या दिया है ये यार, अच्छा वाला दो। चलिए आपका कैमरा भी बार बार फोकस मार रहा है तो ब्लर हो जा रहा है बार बार। मैं थोड़ा सा डार्क लिखने की कोशिश करती हूँ। ओके, अब देखिए मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, बहुत बड़ा दे रही हूँ। 9 5 8 3 2 1 0 5। सब लोग लिखिए अपने कॉपी में। 9 अब दिख नहीं रहा। मैम इट इज नॉट विजिबल मैम। मैम बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैम दिख ही नहीं रहा है। दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। अरे यार एक मिनट, अंशिका पेन और है क्या? दिख रहा है अब? 9 5 3 0 8 9 1 5 दिख रहा है सबको? मैम स्टेट इज ब्लर। नो मैम, ब्लर मैम। ब्लर आ रहा है मैम। Better you write down on your copy, beta. Write down in your copy. स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज लिखिए, कॉपी अपने में copy राइट, में लिखिए। कॉपी में लिखिए बेटा। Whatever ma'am is 9 saying, 5 write down in your copy. Yeah, please write 9 5 3 0 8 9 1 5. I hope everybody has written it. Okay. Now, what I will do is I will write the same number here and minus. There is one sutra. There is one sutra in Vedic mathematics. It is Nikhilam Navatas Charamam Dashatah. That is, it states that subtract all the digits from 9, but the last one from 10. It is a beautiful sutra, wonderful sutra. So subtract all the digits from 9, but the last one from 10. So what does it mean? See, all the digits. First is 9. So 9 minus 9, 0. 9 minus 5, 4. 9 minus 3, 6. 9 minus 0, 9. 9 minus 8, 1. 9 minus 9, 0. 9 minus 1, 8. And the last digit from 10. So this is 5. So this is the discrepancy of the number from its base. So मुझे करना नहीं पड़ा कि इसका बेस क्या होगा, ये 0 0 0 0 0 0, फिर 0 minus 5 equal to 5 है ना, कैरी 1, ऐसा करना नहीं पड़ा। डायरेक्ट मुझे जो निखिलम सूत्र है, निखिलम सूत्र जो है उससे मुझे आसानी से पता चल गया, आसानी से पता चल गया। What is निखिलम सूत्र? Subtract all the digits from 9, but last one from 10. So what I did, 9 minus 9, 0. 9 minus 5, 4. 9 minus 3, 6. 9 minus 0, 9. 9 minus 8, 1. 9 minus 9, 0. 9 minus 1, 8. And 10 minus 5, 5. And you know, therefore what I did is, when I talked about, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने जब बोला था आपको कि यदि मैं, आप देखिए कितना इजी हो गया, यदि मैं 99285 ये नंबर लिखती हूं तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कितने इजीली लिख पाऊंगी, माइनस 0 0, 9 minus 2, 7, 9 minus 8, 1, 10 minus 5, 5. करेक्ट? सबको आया समझ में निखिलम सूत्र? Yes ma'am. Yes, ma'am. Frequency, difference, how you can calculate difference. So it is very easy in practice also. जब हम लोगों को यदि कोई बोलता है कि 5,000 रुपए में से 2,350 माइनस करो, निखिलम सूत्र लगा दो, अब वो 5,000 है तो नेचुरली उसमें से कैरी जाएगा एक, हमें पता है. So it is very easy to calculate the difference basically. So making use of निखिलम सूत्र. Now अब
अब मैं आपको कैलकुलेशंस बताती हूँ। अब हमें ये समझ में आ गया है कि कैलकुलेशंस में से पहले तो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल है ये हमको समझ में आ गया है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि चलिए अब हम देते हैं नंबर पहले 1 into 1 2। दिख रहा है, मैं 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना चाह रही हूं, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how can we represent 11 in Vedic mathematics? 11 plus 1. 12 को कैसे लिखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में? 12 plus 2, राइट? तो मैंने 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना था, so I have converted the numbers into the Vedic mathematics system. Now always keep this thing in mind that the answer is always in 2 parts, and therefore I put a slash in the place of answer. Slash दिख रहा है सबको लिखा हुआ? Yes, ma'am. So this Yes, part of the answer, this part of the answer is 1 into 2. 1 into 2, so it is 2. And this part of the answer is either this way addition or this way addition. You will find the same number. So what is it? 13. 13. So answer is 132. Answer is 132. So what I did, I wanted to have the multiplication of 11 and 12. So I represented 11 as 11 plus 1, 12 as 12 plus 2. And as I said that the answer is always in 2 parts here. So 1 into 2 is 2. Either this way addition or this way addition, I will get 13. So answer is 132. Now there is a beautiful check mechanism. You can put a check whether your answer is correct or not. So what do? We form a square with 2 diagonals like this. Getting me, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So what is the first number? 11. First number is 11. I have to add the digits within this number. So 1 plus 1 is 2. I will write here 2. First number is 11. So 1 plus 1, 2. I have written it here. The second number is 12. So 1 plus 2 is 3. I have written it here. The answer which is coming out here is 1 plus 3 plus 2 now. So it is 6. I will write it here. सबको आ रहा है समझ में मैं जो कर रही हूँ? पहला नंबर है 11. 11 को मैंने उनकी डिजिट्स को ऐड करके और यहाँ लिख दिया. So 1 plus 1 is 2. The another number is 12. So 1 plus 2, I have written here 3. And answer which I got here is 132. So I have added all these 3 digits. So it is 6. 6. Vedic mathematics says that if the multiplication of these 2 numbers, that is 2 into 3, it is coming out to be 6. Then your answer is correct. This 6 is matching with this 6. So your answer is correct. So very interesting multiplication check, basically the Vedic mathematics, our Vedic mathematics has given. So let me take, I think you might have understood about this. अब मैं थोड़ा सा बड़ा number लेती हूँ so that you can enjoy with that. Let me take another number. Okay, and see, let us take that number as in कोई भी हम लोग एक नंबर ले लेते हैं. चलिए, so 1007 into 1011. 1007 into 1011. प्लीज सभी लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में. 1007 into 1011. So the representation of this number is 1007 plus 007, and representation of 1011 is 1011 plus 011. Answer in 2 parts.
So multiplication of these two numbers, 11 into 7 is 77. As there are three digits, so I have to complete here 3 digits. So 077. Now either this way addition or this way addition. So you know that it is 1018. So answer is 1018077. 1018077. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any problem to anybody, please? So let us put a multiplication check now. सभी लोग multiplication check लगाएं. So what is the first number? 1007. So it is 8. 7 plus 1, 8. The another number is 1011. So it is 3. 1 plus 1 plus 1. And all the digits of the answer to be added. So 7 plus 7, 14. 14 plus 8, 22. 22, 23, 24. 24 is again 6. 2 plus 4. So I will write here 6. Since I said that it works in a magical manner, it means it saves time. So I'll tell you one trick. Whenever you find 9 in between, कहीं भी बीच में 9 आता है तो उसको आप बाहर कर सकते हो. देखो यहाँ 1 plus 8 9. तो देखिए यदि हमने इसको नहीं जोड़ा फिर भी हमारा 6 ही आएगा. देखो 7 plus 1, 7 plus 7 14. 14 plus 1 15. What is 15? 1 plus 6. Sorry, 1 plus 5 6. तो ये 9 हमको यदि हमारा समय बचाना है तो कहीं भी बीच में यदि सम 9 आता है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं. Why to unnecessarily waste the time? मेरा कहना समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So what is 8 into 3? 24. 8 into 3? 24. 24. What is 24 ultimately? Add the 2 digits. 6. 6. So they are matching. And therefore our answer is correct. Our answer is correct. So let me proceed for the numbers which are lesser than their bases. And please keep in mind that what I have done here is I am considering those numbers who are having the same base here, because simply I want to show you the mechanism, how really the Vedic mathematics works. सिंपल तरीके से हमको चलना है, इसलिए मैंने अभी बहुत ही आपको टिपिकल केसेस लेके चल रही हूँ. लेट मी टेक द नंबर्स विच आर लेसर देन दिस बेसिस, देयर बेसिस. सो हम सबको पता है 9 into 8 क्या होता है. Everybody knows what is 9 into 8. It is 72. But how really with the help of mathematics we get the answer? So let us look at it. What is the representation of 9? See, this is a single digit. So 10 में से निखिलम सूत्रा. So 10 minus 9 is 1. 10 minus 8 is 2. So representation of 9 is 9 minus 1. And representation of 8 is 8 minus 2. So minus 1 into minus 2 is plus 2. And 9 minus 2 or 8 minus 1 is 7. And therefore answer is 72. This is the way we compute the multiplication, making use of Vedic mathematics. Okay, let us put a check. Check. अब मैं, आप लोग सब बी के बच्चे हो, फिर से बार बार हमको यहाँ वो बनाने की जरूरत नहीं है. आपको बनाना हो तो बना लीजिए. Square. So first number is 9. Second number is 8. So 9 और 8. ठीक है. What is this? It is 9. कभी भी किसी भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, the sum of the digits in that number will be coming to the 9. See, देखो, यदि मैं यहाँ कर भी देती हूँ, so you will find that the first number is 9, so second number is 8, so this is 9. 9 into anything, whatever be the answer, the sum of the digits in that answer is going to come as 9, and therefore it is matching with this.
8 into 9 is 72. 72 means 7 plus 2, 9. So it is correct. Okay. So this was the simplest one, but let me consider the big one now, bigger one. You are all BTech students, so probably you can do it in very well manner. So चलिए हम लेते हैं नंबर 99997 into 99911. 99997 99911. अब हमें निखिलम सूत्रा से डायरेक्ट हम यहां ये जो डिफरेंस है ये निकाल सकते हैं. ये 4 बार 9 है, so all are to be subtracted from 9. So 9 minus 90, 9 minus 90, 9 minus 90, और ये आखिरी वाला 10 minus 73. ओके, ये 3 बार 9 है, तो यहाँ 3 0, subtract all from 9. Then ये जो है ये भी 9 minus 1, so it is 8, and 10 minus this 9. 9. So do it and tell me what is it. Please do it and tell me what is it. बताइए. Is it correct? Yes, ma'am. 99808000067. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Put a check. मल्टीप्लिकेशन चेक लगाए. मल्टीप्लिकेशन चेक लगाने के लिए मैंने जैसे बोला है कि आपको टाइम सेव करना है. सारे 9 को हटा दो. ये 999 कोई जरूरत नहीं, अकेला 7 ले लो. यहाँ भी ये 99 को हटा दीजिए, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आंसर विल बी 2. इधर देखिए 9 plus 9 plus 9 it is 27. 27 plus 1 28. This is 29. So 2 plus 9 is 11. 11 is 2. और यहाँ यदि हम इसको हटा देते हैं और 1 plus 1 भी लिखते हैं तो 2 ही आएगा. ये वाले 9 ये दोनों हटा देते हैं. 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29. 2 plus 9 is 11. 11 is 2, and therefore I will write here 2. Okay, but what is going to happen? Please look at it. 2 into 7, it is 14, but 14 is 5. So this number is not matching. So there is some 99902 होगा. 99908 होगा. हाँ? 99908 होगा फर्स्ट में. और मैम वहाँ पे जो आपने एडिशन करा है 4 times 0 3 plus 3 times 0 89, वो मैम 00267 है. कहाँ? Yes, ma'am. ये जो पीछे यहाँ पे 00267 होगा वो. Yes. Yes, ma'am. बिल्कुल सही है, पर सब लोगों किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं करा है ना. सो बेसिकली दिस इज रॉन्ग. दिस पार्ट इज रॉन्ग. और इसीलिए देखो ये रॉन्ग बताया. यहाँ मल्टीप्लिकेशन चेक देखिए. दिस 2 इज नॉट मैचिंग विद दिस. सबको आ रहा है समझ में? तो ये चेक ने बताया कि ये मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर गलत है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. आया बेटा समझ में? सो व्हाट शुड बी हियर? क्या होना चाहिए? मैम 2. 267. यस मैम. एंड मैम जो आगे है 99908 होगा मैम. 99908. 08. किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया. आपको खुद को करना है. अब चलिए देखें. अब देखते हैं हम. So 7 and 2 will be as it is because numbers are same. Numbers are same, okay? So ये हमने 3 9 को उड़ा दिया.
8 और 2 10, 10 है 10 means 1. So 1 plus 6 7, 7 plus 7 14. So 14 is 5. Again कुछ गड़बड़ है? नहीं, not गड़बड़. I'm sorry. Here I will write. So this is 5. This is 5. 7 into 2, 14. 14 is nothing but 5. So answer is correct now. Answer is correct. सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can you take one problem from my side and tell me whether you could do it or not? लिखिए. Write the two numbers. I am going to give you the two numbers. One 112 into 1006. चलिए करिए और मुझे बताइए. अंशिका में अंदर आने मत देना. Ma'am, completed. Just wait for a while. Just solve it. Now, just wait. So what is the answer? I'm 1118672. 1118. 0672. Slash Yes, ma'am. 72. नहीं स्लैश नहीं, अब तो आंसर ही बताओ ना. स्लैश क्यों? Ma'am, 672 है. 672. Could you check the answer whether it is correct or not? आप चेक लगाइए बेटा, मल्टीप्लिकेशन चेक लगाइए. Yes, ma'am. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, it is correct. It is correct. मैम मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, अभी आप इसको करके बता सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल. चलिए 1112 और दूसरा नंबर क्या था? 000 और 006. 006. यस बेटा, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1112 को प्लस 112. ठीक है? Yes, जिसको ma'am. नहीं समझ में आया है प्लीज लेट मी नो. दिस इज 006. ठीक है? हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 112 into 6. Yes, So ma'am. what is it? This 672 बेटा. Correct? Yes or Yes, no? ma'am. जिसको नहीं समझा Yes, ma'am. And now either this plus this or this plus this, you will find the same. So it is 1118. ठीक है? So answer is 1118,672. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मल्टीप्लिकेशन चेक लगाओ आप. तो सिंपल बात है. देखो यहाँ कितने बार 9 आ रहा है. ये एक 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है. हटा दो तो 6 7 8 और ये यहाँ अपने को समझ में आ जाएगा. सो आप तो बिल्कुल हम देख के भी कर सकते हैं. एक बार हमें प्रैक्टिस हो गई कि. मैम. हाँ जी मैम आपने बताया था कि अपन सारी डिजिट को 9 से माइनस करते हो, लास्ट वाले को 10 से, बट इधर तो अपन ने ऐसा कुछ करा ही नहीं बेटा. 9 और ये कब करते हैं? जब नंबर्स अपने बेस से कम होते हैं. यस मैम. व्हाट इज द बेस फॉर दिस नंबर? 1000. यस मैम. व्हाट इज द बेस फॉर दिस नंबर? अगेन 1000. यस मैम. है ना? हम कब करते हैं? जब वो बेस से छोटे होते हैं नंबर्स. और छोटे होते हैं इसीलिए माइनस आता है. बड़े हैं ये ज्यादा है इसलिए प्लस आ रहा है. ओके मैम कैन यू टेल वंस अगेन मैम ये 112 और 006 कैसे आया? देखो
ये इस नंबर के लिए बेस क्या है बेटा? 1000, ठीक है? यस मैम। है ना, इसके लिए 1000 है। अभी 1000 से कितना बड़ा है ये वाला नंबर? 112 बड़ा है। दिस नंबर इज 112। 112 से बड़ा Yes. है ये, है ना, इसलिए लिखा हमने 1006। इस बेस से कितना बड़ा है? 6, इसलिए Yes. लिखा है इसको। अब ये 3 डिजिट्स क्यों लिखी? क्योंकि ये जो 1000 है इसमें जीरोस कितने हैं? 3। Yes, तो ma'am, हमने understood. उतने डिजिट्स कंप्लीट करनी है, ऐसा Yes, मैंने ma'am. शुरू में ही बताया था। आया समझ में? Yes, ma'am. Thank you, Is ma'am. there any difficulty to anybody, please? जल्दी बोले, फिर हमको बहुत सारी छोटी छोटी और चीजें मुझे समझानी है, आपको मजा आएगा। आपको आ गया समझ में ये? Yes, ma'am. आगे मैम। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए Yes, ma'am. अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा था कि 10 ये बेस हो सकता है और 100 ये 10 to the power 2 ये बेस हो सकता है। परंतु वैदिक मैथमेटिक्स में सब बेसिस का भी कंसेप्ट है, सब बेसिस का भी कंसेप्ट है। तो व्हाट आर दी सब बेसिस? द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ दीज बेसिस। मल्टीपल यानी 10 का मल्टीपल 20 भी है, 10 into 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये सब मल्टीपल है 10 के बेटा, और इसलिए ये सब बेसिस हो सकते हैं। सिमिलरली 100 भी यदि बेस है तो इसके सब बेसिस क्या हो सकते हैं? 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। ऐसे सभी बेसिस के मल्टीपल्स जो है वो सब बेसिस हो सकते हैं। अब हमको यदि एक किसी ने बोला कि भैया आप जो है ये सब बेसिस का उपयोग कैसे करते हो, सो आई विल टेक वन सिंपल एग्जांपल। 21 into 22, 21 into 22। अब ये 21 जो है ये 10 से बहुत बड़ा है यार, है ना। ये इसको हम यदि 10 बेस मान के करते हैं तो ये 21 + 11 आएगा वो। सिमिलरली ये नंबर भी 22 + 12 आएगा। अब ये जो प्लस या माइनस के आगे के आंकड़े होते हैं, है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है आगे, हम सबको पता है। पर उसको कम करने के लिए, वो मल्टीप्लिकेशन में टाइम कम लगाने के लिए या इजी करने के लिए सब बेसिस का उपयोग किया जाता है। सिंपल बात है। तो अभी हमने क्या करा कि सब बेस माना 20, इन दोनों नंबर्स के लिए सब बेस माना 20, है ना। सो हमको पता है कि 20 इज नथिंग बट 10 into 2, हमें पता है। ये सब बेस जो है इसका रिलेशन पता है, जो हमारा मेन बेस है उससे रिलेशन पता है हमें। अब हम क्या करेंगे, 20 यदि मेरा सब बेस है तो 21 को मैं लिख सकती हूँ 21 + 1, और 22 को लिख सकती हूँ 22 + 2, ठीक है। वही 1 into 2, 2। okay, either this way addition or this way addition, so it is 23, but answer is not 232। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने सब बेस यूज करा है, यहाँ मेन बेस यूज नहीं करा है। कैलकुलेशन तो मेन बेस के हिसाब से ही किया, परंतु यहाँ हमें कुछ एडिशनली करना पड़ेगा। कैन एनीबडी टेल मी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? यहां हमने सिमिलर मैनर में, बिल्कुल सेम मैनर में हमने मल्टीप्लिकेशन करा यहाँ सब बेस यूज करके, बट कैन एनीबडी टेल मी व्हाट एडिशनली द सब बेसिस 01 and 02 व्हाट, ये वाला रिलेशन यूज करना है अब आपको। 20 = 10 into 2 कहाँ यूज करोगे इसको? 2 से मल्टीप्लाई 232 में भी इंटू करेंगे। कहाँ करेंगे? 23 में करेंगे। 23 में करेंगे। वेरी गुड। सो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, बिकॉज 10 into 2 is 20, so it is 46 and therefore answer is 462।
देखो 462 आंसर आ रहा है क्या? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। When we so how the calculation differs? So it is affected here in this part. It is affected in this part. ठीक है? एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आप करेंगे बेटा? यस मैम। यस मैम। मल्टीप्लिकेशन चेक भी वैसे ही लगेगा सेम। जो भी मल्टीप्लिकेशन चेक जिस मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाना है सेम यू कैन। चलिए अब हम करते हैं, लिखिए आप 32 इंटू 31 नहीं 37। या मैंने अभी आपको ये नहीं बताया है, एक काम करते हैं 33 करिए, 32 इंटू 33। यस प्लीज कम ऑन। 32 plus 2, 33 plus 3, so 3 into 2 is 6. So this is 35. So what should I do with this 35? Into 2, 700. Into 3. Into 3. Into 3. So 1056 is the answer. How simple it is. Why you have multiplied this factor by 3? Because base It is a multiple of 30. Yeah, it is a multiple of 3. 10 into 3. The base 30 is multiple of 3, main base. Okay, so this is 1056. So put a multiplication check and see whether the answer is correct or not. But मैं एक छोटा सा आपको और वेरिएशन बताती हूँ. So what is that? Suppose I take, let us say 12 and 17. है ना, फिर से एक छोटा सा ले रही हूँ, इसमें छोटा सा एक वेरिएशन आपको बताना है कैरी का. So 12 is equal to 12 plus 2. 17 is equal to this. What is 2 into 7? 14. 14. How many digits are there in 14? 2 digits are there. Here you can accommodate one digit, and therefore only one digit will be accommodated here. So what I will write? 4 and carry 1. 14 ka 4 and carry 1. If see here is only one digit, and therefore only one digit will be accommodated here. So where the 14 ka 4 has to be written here and 1 is the excess which is written like this. Then 7 plus 12 or 17 plus 2, it is 19. So basically this has to be added here to get the answer as 204. Got me everybody? Yes, ma'am. Excess जो है वो कैसे होता है, ठीक है, समझ में आया? So it may happen with the sub-base criteria also. So only the excess are to be added to the left part of the answer. Ma'am, can we write here 17 equals to 17 minus 3? No. Why minus? Why minus 17? See, क्यों करोगे बेटा? आप तो इस केस में 20 बेस ले रहे हो, फिर यहाँ भी लेना पड़ेगा आपको 20 बेस. ओके मैम, है ना? यस मैम. वैसे आगे जब तुम बहुत अच्छे से और करने लग जाओगे तो एक प्लस और एक माइनस से भी आप आराम से सीख जाओगे. होता है, वो भी होता है बेटा. पर अभी मैंने आपको क्या बताया है? आई एम गोइंग टू कंसीडर द नंबर्स विच आर हैविंग द सेम बेस. ठीक है? Yes, ma'am. Yeah. Yes, So let ma'am. me proceed further for another thing. ये तो मल्टीप्लिकेशन बताया ना. अब जनरल मल्टीप्लिकेशन. आप लोगों को हैरानी होगी कि हम जो मैथमेटिक्स में अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं वो बहुत पहले से हैं, और वो कंसेप्ट जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. इट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट सबको पता है, हम लोगों ने सबने डिटर्मिनेंट्स यूज किए कि नहीं? डिटर्मिनेंट्स यूज. Yes, सबको ma'am. पता है Yes, ma'am. डिटर्मिनेंट्स का मतलब.
है ना? So let me tell you the multiplication of those numbers which are having any basis. अपने को बेस का कोई मतलब ही नहीं। अब मैं जनरल मल्टीप्लिकेशन अब लेना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। So let me take one example. Let us say it is 21 into 17. 21 into 17. अब मैं यहाँ बेस क्राइटेरिया नहीं ले रही हूँ, मैं सीधे इन जनरल, हम लोग व्हाट इज द जनरल मेथड टू गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 21 into 17। अब चूंकि मुझे बेस लेना ही नहीं है तो प्लस माइनस का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी यदि नंबर्स दिए हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, हम देखें। ये 2 डिजिट्स के नंबर दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, 7 into 1, सो यहां हमने लिख दिया 7। सबको आ रहा है समझ में? आई एम टॉकिंग ऑफ द जनरल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। फिर मैंने क्या करा, ये जो पार्ट है, सो 7 into 2 plus 1 into 1, व्हाट इज इट? 7 into 2 14 plus 1 into 1 15। ओके, सो मैंने क्या करा, यहां लिखा 5 और यहां लिया कैरी 1 15 को, एंड देन 2 into 1। क्या हम इसी तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करते बेटा? What I did, 7 into 1 7, then this way multiplication and addition 15, so 5 1 excess, and this way multiplication 2, and therefore what will be the answer? 357. 357, very good, 357, very good। चलिए जल्दी से मुझे करके दिखाइए आप लोग। अब 44 लिखो सब लोग। 44 into 53, 44 into 53, जल्दी से करके बताइए मुझे क्या होगा। मैम पहले 12 आएगा तो 1 कैरी दे देंगे। करो बिल्कुल, चलो करते चलो बेटा, जैसे बताया वैसे ही करना है। मैम इसमें डिटरमिनेंट में बस यही फर्क है ना कि इसमें ऐड करते हैं और डिटरमिनेंट में माइनस होता है। हाँ बिल्कुल, पर क्या होता है कि डिटरमिनेंट का भी मैकेनिज्म इसी टाइप का होता है ना। हाँ, यस अपन जब डायरेक्शन की बात करते हैं, डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं। सो चलिए करिए। I'm done. Yes, ma'am. Done. 12 और 20। यस 3 20 2 3 3 2 answer। व्हाट इज द आंसर? 2 2 3 3 2 2 3 3 2। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, ma'am. सबको आया? कैसे, किसको नहीं समझ में आया, प्लीज लेट मी नो। 4 into 3 12, so 2 carry 1। This is 4 into 3 12, 12 plus 20, so it is 32, 2 3 carry, 5 into 4 20, so now this has to be added here and this has to be added here as they are the excesses, so it is coming out to be 2 3 3 2। put a multiplication check and see whether it is correct or not, you can go ahead for that। एक्सक्यूज मी मैम। yes मैम ये लेक्चर अभी कितनी देर और चलेगा? I don't know। मैम हमारा लंच टाइम हो गया है आज। हाँ बस हो रहा है बेटा, बस हो थोड़े 15 मिनट्स ऊपर हो गए मैम। बेटा ऐसा नहीं बोला जाता है ऐसा नहीं कभी भी, बोलते। है ना। इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव एंड मैम इज गोइंग टू कंक्लूड, शी नोज। Yes. ओके मैम। ओके चलिए, अब समझ में आया आपको? सच में जोर से भूख लग रही है? हाँ, बहुत सारी चीजें बेटा। एक आखिरी में मैं आपको, कई सारी चीजें हैं। अब यदि इसी को हमने 3 का दे दिया, ये हमने इस टाइप से नंबर बना दिया, तो इसका मैकेनिज्म अलग हो जाता है। अब आप लोग देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, ऐसे ये अब मैंने 3 डिजिट का कर दिया, 3 डिजिट के लिए हमारा मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। क्या होगा ये देखिए और करके देखो, आप एक्सप्लोर करो बेटा। आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हो, सो यू कैन एक्सप्लोर द मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3।
कैसे करोगे देखो, एक आखिरी में मैं आपको खूब इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। सो उसके बाद जो है आप अपने मन से कोई भी वैदिक मैथमेटिक्स की किताब उठा के, और डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड विद दैट। देखिए स्क्वायर कैसे निकालना, मैं सिर्फ एक बार आपको ट्रिक बताऊंगी तो आप फटाफट खुद ही बता देंगे कि व्हाट विल बी द स्क्वायर। सबसे पहले मैं स्क्वायर ऐसे नंबर्स का बताती हूँ जिनके यूनिट प्लेस पर 5 है। सो 15 स्क्वायर। सो 15 में यूनिट प्लेस पर 5 है बेटा, 225। ये ना आप लोगों ने खूब किया हुआ है मैथमेटिक्स यूज, पर वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे आता है ये बताती हूँ मैं आपको। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। देखो कैसे आता है, एक सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन विच सेज दैट पहली वाली जो डिजिट है, सो ये 1 है, ये पहली डिजिट, इसको इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 1? 2 एंड सिंपली यहाँ 5 स्क्वायर लगा दो, आ गया आंसर। सो 1 into 2 is 2, 5 स्क्वायर यानी 25 लगा दो। दिस इज द वे कंप्यूटेशन। मैम इसका लिमिटेशंस क्या है? सुनो तो पहले, हम जो बता रहे हैं पहले बताओ, पहले ये देख सुनो ना। जिस नंबर पे यूनिट प्लेस पर 5 है उसके लिए हम स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, है ना, ये हम लोग देख रहे हैं। अब मेरे को बताओ, यदि 25 का, अब सबको पता है 25 का स्क्वायर 625 आता है, तो सिंपली 2 into 3 करना है और आगे 25 लगा दो। सो 625 सही है बेटा? यस मैम। मुझे बता सकता है 85 का स्क्वायर? जल्दी जल्दी बताओ। 8 नम 7225। वेरी गुड वेरी गुड। कोई मुझे 105 का स्क्वायर जल्दी बताओ, जल्दी से 105 का स्क्वायर। 11025। हाँ वेरी गुड। आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? देखिए अब किसी ने पूछा था इसका लिमिटेशन क्या है, मैंने ये जो तरीका बताया है इसका लिमिटेशन ये है कि यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए, तो ही आप इस हिसाब से स्क्वायरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और भी तरीके नहीं हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ ही इसको खत्म करते हैं, पर मैं सब लोगों से रूबरू होना चाहूंगी। बेटा अच्छे से सुनो, ये वैदिक मैथमेटिक्स जो है ये ऐसा मैथमेटिक्स है कि जिससे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हो, अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, बड़े बड़े डिविजन सॉल्व कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, डिफरेंस इक्वेशंस तक लोगों ने सॉल्व किए इससे। सो बहुत बहुत दम है इस मैथमेटिक्स में। जिसको भी इंटरेस्ट हो वो कोई भी एक किताब उठा के पढ़ना शुरू करे। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। इन केस कभी आपको आगे भी और पढ़ने की इच्छा हो तो हमारी रेखा मैडम को हम बोलते हैं कि रेखा मैडम हम लोग आपके यहाँ वर्कशॉप भी कर सकते हैं। Yes, करते हैं है ना। इंदौर के बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत काम किया है। यस मैम, बहुत काम किया है। तो हम 2 घंटे का रोज ऐसा 2-3 दिन का वर्कशॉप भी कर सकते हैं। दोज आर इंटरेस्टेड। आज तो हमारा मकसद था कि आपको जो है रूबरू करवाना हमारे वैदिक मैथमेटिक्स से। सो मुझे पता है टाइम ज्यादा हो रहा है, बट उसको कंक्लूड करना भी जरूरी था। ऐसे कई सारे फ्रैक्शन 1/29 2 मिनट के अंदर निकाल के बता सकती हूँ मैं। 1/132 मैं 2 मिनट में निकाल के बता सकती हूँ, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए जो आप लोग भी आसानी से कर सकते हो। सो प्रैक्टिस से हर कुछ चीज होती है, हमें भी पता है ये चीज। सो खूब मैजिकल मैकेनिज्म्स है, मैजिकल मेथड्स है इसमें। हम लोग इसको सच में यदि यूज करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है, स्पेशली युवाओं को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे पार्टिसिपेट करते हैं। सो मुझे लगता है कि सच में टाइम हो रहा है। बच्चों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच बेटा। एंड प्लीज जरूर यूज करें। नहीं भी यूज किया आपने तो आपके जो अड़ोस पड़ोस के या अपने फैमिली में जो बच्चे हैं सबको बताएं कि वैदिक मैथमेटिक्स है क्या चीज।
Yes, मेरा ma'am. मकसद तो यही है कि वैदिक मैथमेटिक्स का नाम बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, और यदि उसका उपयोग कर सकते हैं तो करना चाहिए। आज आपको इतना पता चल गया है तो आप जो है बाकी लोगों तक सबको पहुंचाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड रियली एंजॉयड टू बी विद यू फॉर दिस रीजन। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, ma'am. Priyanka? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for Thank you, such a ma'am. knowledgeable lecture. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Priyanka? Thank you, ma'am, for सबको such a mute off कर knowledgeable दो. lecture. I am very sure that all the participants would be benefited. Thank you, Priyanka. I, Dr. Rekha Jain, on behalf of Mathematics Department, Medicaps University, and on my own behalf, extend a very heartfelt thanks to our expert, Dr. Maya Ingle ma'am, for sharing her valuable time for our students and for us to provide a very interactive and informative lecture. Thank you so much, ma'am. I would like to, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I would also like to thank our Honorable Vice Chancellor, Dr. Patnaik sir, for his support and motivation. I would also like to thank our Pro Vice Chancellor, Dr. D.K. Panda, for his guidance. Events like this cannot happen over the night. Ma'am, we are actually making this a weekly event. So the wheels start rolling weeks ago, and we have been very fortunate enough to have a dedicated colleagues of mine who have made all the efforts to make this event successfully. In this regard, I would like to name few of them: Dr. Rinku Verma and Ms. Dipali Biniwale. She is co-convener for this event. Thank you so much. I would also like to thank our technical team for all their support. Mr. Surikant Soni leads our technical team. Thank you, Surikant. A special thanks to our sponsor, National Council for Science and Technology Communication Delhi and MP Council for Science and Technology Bhopal for providing financial aid to us. Thanks. And last but not the least, my dear students, to listen it very carefully and interact with ma'am to get your answer. I hope this session is very useful for all of us, and for especially for our students. They are beginners and they can learn many more things from Vedic mathematics as they get aware of this thing. So thank you so much, all of you. Thank you.